Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. So, dear students, before starting today's topic, let's quickly revise what we discussed in the last lecture. So, in the last video lecture, we have discussed transmission of signal through the LTI system. It means that we have modeled the communication system as an LTI system. So this is the LTI system, and we pass this LTI system, and we passed input signal, that is signal or any information signal, through the LTI system, and we observe the output response of the system. So the output signal in that case is nothing but it is the convolution of input signal. It is a convolution of input signal and impulse response of the LTI system. This system is characterized as the impulse response, characterized by the impulse response of the system. So we have discussed that the output of this communication system, which is modeled as LTI system, is nothing but convolution of input signal x of t and its impulse response h of t in the time domain. And in the frequency domain, this will be the multiplication, that is the y of f is equal to x of f into h of f into h of f. What is y of f? That is the Fourier transform of this y of t, that is output. X of f, that is a Fourier transform of this x of t, and h of f, that is a Fourier transform of the impulse response of this LTI system. We have also discussed about the distortionless transmission. It means that what is the meaning of distortionless transmission? Distortionless transmission matlab, if the signal shape is preserved in the output, then we can say it is the distortionless transmission. Matlab, whenever we are sending the signal through the transmission line, and if the shape of the output signal is equal to the shape of the input signal, then we can say the transmission is the distortionless transmission. Okay, so if there is a delay in the output signal with respect to input, that is okay. If there is a scaling of the amplitude of the output signal, that is also okay. But if the shape of the signal is preserved, then we can say that it is known as a distortionless transmission. So in case of distortionless transmission, the output signal can be given as, that is y of t is equal to a x of t minus t naught. Then this is known as a distortionless transmission. So you can see output signal of the system, that is y of t, is nothing but delayed version of the input signal gets delayed, and its amplitude can be scaled by some factor a. So अगर आपका आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में थोड़ा डिलेड वर्जन है, और आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में उसके एम्पलीट्यूड में फुल स्केलिंग आया है, तो वो डिस्टॉर्शन नहीं है. ओके, इट इज नोन एज अ डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट में इनपुट सिग्नल थोड़ा डिलेड है और उसका एम्पलीट्यूड इज स्केल बाय सम फैक्टर है, बट उसका शेप प्रिजर्व हो रहा है. So if the shape of the signal is preserved in the output, then it is known as a distortionless transmission. And हमने एक condition भी discuss की थी. What is the condition for the distortionless transmission? So condition is that for distortionless transmission, the condition is that the magnitude response of the system should be constant over the frequency range, as well as the phase of the frequency response must be changing linearly with the frequency. So these are the two conditions for the distortionless transmission. Okay, now today we will discuss about the energy and power signals. Okay, so ये concept जो है energy and power signal, ये भी आपने आपके signal और system course में आप पढ़ चुके हो. Just we will going to revise this concept. What is the energy and power signal? So let's start. So सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल व्हेन इट हैज द फाइनाइट एनर्जी. अगर कोई सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी सिग्नल. एंड एनर्जी ऑफ द सम सिग्नल एक्स ऑफ टी, सपोज मेरे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी है, So the energy of the signal x of t
can be found as energy is equal to integration minus infinity to infinity square of the signal, that is x square of t dt. So this is how mathematically we can find the energy of any signal x of t, which is a continuous time signal. X of t is the continuous time signal, that is a CT, continuous time signal. Now अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके एनर्जी फाइंड करूंगा और अगर जो एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो फाइनाइट है तो वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है. सिमिलरली अ सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल इफ द पावर ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट. अगर मैं सिग्नल का पावर फाइंड करूं और अगर वो मुझे फाइनाइट वैल्यू मिलती है देन द सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल. एंड हाउ टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द सिग्नल? सो सपोज मेरे पास सिग्नल x of t है विच इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, देन इज पावर कैन बी फाउंड एज पावर p is equal to limit t tends to infinity 1 over 2t minus t to t integration minus t to t x square of t dt. So basically ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो हमें पता है बेटा कि पावर क्या होता है. पावर इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी. Okay, this is the energy, and if we divide by the total time, that is 2t, then it is becomes average power. So this is the average power. Okay, समझ में आ गया how to find the energy and power of the signal? So we can find the energy of the signal using this formula. We can find the power of the signal using this formula. Now कोई भी सिग्नल है तो कोई भी सिग्नल एनर्जी एंड पावर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता. सो सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी एंड पावर साइमल्टेनियसली. अगर कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो वो पावर सिग्नल नहीं है. अगर कोई सिग्नल पावर सिग्नल है तो वो एनर्जी सिग्नल है. ये याद रखना. कोई भी सिग्नल अगर एनर्जी सिग्नल है तो वो पावर नहीं हो सकता, और अगर कोई पावर सिग्नल है तो वो एनर्जी सिग्नल नहीं है. सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी एंड पावर साइमल्टेनियसली. ऑल्सो सिग्नल में बी नाइदर एनर्जी और नॉर पावर सिग्नल. मतलब ऐसा जरूर नहीं है कि कोई भी सिग्नल है तो वो एनर्जी सिग्नल होगा या पावर सिग्नल होगा. वो एनर्जी सिग्नल भी नहीं हो सकता, वो पावर सिग्नल भी नहीं हो सकता. समझ में आ गया? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज जीरो इफ यू कंप्यूट द पावर ऑफ द एनर्जी सिग्नल इज जीरो. ओके, देन इट विल बी रिजल्ट्स इन जीरो. एंड एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट. अगर हम एनर्जी सिग्नल का पावर फाइंड करेंगे तो वो जीरो मिलेगा. एंड अगर हम हमारे पास कोई पावर सिग्नल है और इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे तो वो हमें इनफाइनाइट मिलेगी. ओके, नाउ लेट मी गिव द सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द एनर्जी एंड पावर सिग्नल सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. तो सपोज मेरे पास ये फायर क्रैकर है. सो फायर क्रैकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल. फायर क्रैकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल. ओके, तो सपोज if you light this firecracker, then firecracker has a finite amount of energy. इसके पास finite amount energy होगी. and combustion stop once the chemical energy stored in it runs out. इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी होती है और कंबसन स्टॉप हो जाएगा जब उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो खाली हो जाएगी. सो thus we have, if we attempt to compute the power delivered by this firecracker over the long period of time, then it will be zero. उसके पास फाइनाइट एनर्जी है. केमिकल एनर्जी कितनी है? फाइनाइट है. ओके, तो वो जितनी एनर्जी होगी उतने टाइम तक, जितनी एनर्जी उसके पास होगी उतने टाइम तक कंबसन होगा, फिर बाद में स्टॉप हो जाएगा. अगर हम पावर फाइंड करेंगे, पावर डिलीवर्ड बाय दिस फायर क्रैकर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बी जीरो. कैसे? बिकॉज पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. और हम टाइम कैसा कंसिडर कर रहे हैं? इट इज वेरी लॉन्ग. ओके, थियोरेटिकल इनफाइनाइट. तो एनर्जी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? जीरो. तो ये पावर क्या मिलेगा मुझे? जीरो. ओके, पावर क्या मिलेगा? जीरो. तो ये हो गया. इसमें ये फायर क्रैकर में एनर्जी फाइनाइट है एंड पावर इसका क्या हो रहा है? जीरो. सो दिस इज द एनर्जी सिग्नल. सो फायर क्रैकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनर्जी सिग्नल. दूसरा एग्जांपल एनर्जी सिग्नल का है हमारी बैटरी. हमारे पास जो बैटरी होती है, ओके, तो बैटरी में भी जो एनर्जी स्टोरेड है वो फाइनाइट है और वो लॉन्गर टाइम तक नहीं चलती. आप बैटरी आपके फोन में है तो वो इसमें जो स्टोरेड एनर्जी, एक बार आप उसको फुल चार्ज कर लेते हो तो इसमें जो एनर्जी स्टोरेड है वो 1-2 दिन तक चलेगी, फिर बाद में वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी. तो उसकी एनर्जी फाइनाइट है. अगर हम इसका पावर फाइंड करें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो क्या मिलेगा? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम. दैट इज टाइम. तो हम इनफाइनाइट कंसिडर करें थियोरेटिकली तो वो क्या हो जाएगा? जीरो.
So battery is an another example of the energy signal. Now let me give you the some practical example of power signal. So our sun, जो sun है, our sun is the good approximation of the power signal. Sun is the good approximation of power signal. वो approximation है, actually वो power signal नहीं है. तो sun is the good approximation of the power signal because it delivers constant power for long period of time, for billions of years. In other words, the energy of the power signal is infinite. वो sun क्या कर रहा है, वो constant power हमें दे रहा है daily for long period of time. कितने टाइम तक? billions of years. तो अगर वो constant power long period of time दे रहा है मतलब उसमें एनर्जी कितनी है? infinite. ओके, वो कैसे? बिकॉज एनर्जी क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. लेकिन टाइम कितना है? बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ही लॉन्ग टाइम है, अप टू थियोरिटिकल इनफाइनाइट. तो एनर्जी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट. अगर टाइम इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट ईयर्स तक हमें एनर्जी सप्लाई, पावर सप्लाई कर रहा है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट. ओके, तो उसमें पावर फाइनाइट है लेकिन एनर्जी कितनी मिली हमें? इनफाइनाइट. एनर्जी कितनी मिली? इनफाइनाइट. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? सन इज अ एग्जांपल ऑफ द पावर सिग्नल विच हैज द इनफाइनाइट एनर्जी. ओके, सो one more important thing, the sun is only approximation to the ideal case because sun does not contain infinite energy and will run out of energy someday. Okay, मतलब उसके पास infinite energy actually नहीं है. The energy will be run out at some day. Okay, so for our purpose it can be approximated as a constant power source. Okay, so ideal power signal is impossible to find in nature and it must contain infinite energy. तो आइडियल पावर सिग्नल नेचर में पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल. बिकॉज अगर कोई आइडियल पावर सिग्नल है तो उसके पास इनफाइनाइट एनर्जी होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल. सो दिस वट एवर एग्जाम्पल आई हैव गिवन फॉर द पावर सिग्नल, दैट इज वी हैव कंसिडर्ड सन विच इज ओनली अप्रोक्सीमेशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पावर सिग्नल. इट इज नॉट एक्चुअली पावर सिग्नल. ओके, good. Now let's calculate the energy and power signal of some signals. I have some signals over here. Let's calculate the energy and power and decide whether it is energy signal or power signal. So first example, calculate the energy and power of the signal S of t is equal to 2 times ut. Okay, तो ये ut मतलब क्या? यूनिट स्टेप सिग्नल. इट इज द यूनिट स्टेप सिग्नल. आई होप कि यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है वो आपको पता होगा. यू ऑलरेडी लर्न इन योर सिग्नल सिस्टम कोर्स. ओके, सो यूएफटी मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल. तो पहले हम इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर बाद में पावर फाइंड करेंगे. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्क्वायर ऑफ टी डी टी, स्क्वायर ऑफ द सिग्नल. अब एस ऑफ टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2 टाइम्स यू टी. तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी. अब यूनिट स्टेप सिग्नल कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके इंफिनिटी होता है. ओके, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनिट स्टेप सिग्नल इज 0 एंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इट्स वैल्यू इज 1. ओके, सो वी विल डिफाइन यू ऑफ टी ओनली फॉर 0 टू इंफिनिटी. तो ये इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 0 में वो क्या है? 0 है, और 0 टू इंफिनिटी में यूनिट स्टेप है. So we will change the limit from 0 to plus infinity. 2 square u of t is equal to 1 in the duration 0 to infinity. तो u of t is equal to 1 हो जाएगा. तो अब क्या बचेगा? 2 square into dt. What is 2 square? That is 4. 4 बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है. अंदर क्या बचा? किसका इंटीग्रेशन करना है? 1 का. तो 0 to infinity 1 dt. What is the integration of 1 with respect to dt? That is t. तो ये हो जाएगा t लिमिट 0 to infinity. तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इन्फिनिटी. तो आप देख सकते हो कि एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल इज इनफाइनाइट. एनर्जी इनफाइनाइट है. ओके, तो एनर्जी इनफाइनाइट किसकी होती है? पावर सिग्नल की. तो अगर हम पावर नहीं फाइंड करेंगे तो भी बोल सकते हैं कि दिस इज द पावर सिग्नल. नाउ लेट्स कैलकुलेट द पावर. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर P इज इक्वल टू लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू इंफिनिटी 1 over 2 times capital D इंटीग्रेशन माइनस T टू कैपिटल T स्क्वायर ऑफ T dt. ओके, तो यहाँ पे सब कुछ वैल्यू रख देते हैं. एस ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ut. और ये यूनिट स्टेप सिग्नल विच ओनली एग्जिस्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू t, सॉरी, लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू इंफिनिटी 1 over t 0 टू t 2 स्क्वायर dt. ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो हमें आंसर मिलेगा पावर इज इक्वल टू
2 बिकॉज ये टी कैंसिल हो जाएगा। ओके यहाँ पे तो पावर हमें कितना मिलेगा 2 विच इज फाइनाइट। सो पावर इज फाइनाइट, पावर इज फाइनाइट, पावर फाइनाइट है, एनर्जी इनफाइनाइट। तो ये कैसा सिग्नल है? पावर सिग्नल है। सो दिस इज द पावर सिग्नल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिग्नल गिवन इन द फिगर। हमारे पास एक सिग्नल x ऑफ t है विच इज गिवन इन द फिगर और इसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ t स्क्वायर dt। अब आप देख सकते हो कि ये सिग्नल जो है वो कहां से कहां तक इट एग्जिस्ट ओनली फ्रॉम 0 to 2। तो लिमिट कहां से कहां होगी? 0 to 2 और ये पीरियड में उसकी वैल्यू क्या है? 4। So x of t from the figure we can say that x of t is equal to 4 for 0 less or equal to t less or equal to 2 and okay और x of t is equal to 0 for t greater than 0। ओके तो हमारी लिमिट क्या रहेगी? 0 to 2 और 0 to 2 में ये सिग्नल कौन सा है? दैट इज 4। सो 4 स्क्वायर इंटू डी टी, 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 dt और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? t और यहाँ पे t होगा, t में लिमिट रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 32। तो एनर्जी क्या मिली मुझे? 32 विच इज द फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है, मतलब ये कौन सा सिग्नल है? एनर्जी सिग्नल। सो दिस इज द एनर्जी सिग्नल। हमें उसका पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज द सिग्नल कैन नॉट बी एनर्जी एंड पावर साइमल्टेनियसली। अगर ये एनर्जी सिग्नल है तो बट ऑब्वियस उसका पावर क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। अगर आप इसका पावर कंप्यूट करेंगे तो आपको पावर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ दिस फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी सिग्नल, हेंस द गिवन सिग्नल इज द एनर्जी सिग्नल। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल s of t is equal to sin of t, sin of t। so this is sinusoidal signal। okay so first calculate the energy। so according to the definition of energy, energy is nothing but minus infinity to infinity s square of t dt। what is s of t? that is sin of t। so this is the sin square of t dt। now according to the trigonometry, sin square t क्या होता है? sin square t is equal to 1 minus cos 2t divided by 2। okay according to the trigonometry, तो instead of sin square t we can write 1 minus cos 2t divided by 2। तो minus infinity to infinity integration 1 minus cos 2t divided by 2 dt। so इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू 1 dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी cos 2t dt। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। सो यू कैन सी एनर्जी इज इनफाइनाइट, एनर्जी इज इनफाइनाइट। ओके नाउ लेट्स कंप्यूट द पावर। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर, p इज इक्वल टू लिमिट कैपिटल T टेंड्स टू इंफिनिटी 1 over 2t इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल 2 to कैपिटल T s स्क्वायर ऑफ t dt। व्हाट इज s ऑफ t? sin t। तो ये sin स्क्वायर t लिख दो और वट एवर प्रोसीजर वी डिड ओवर हियर, दैट इज यूज दिस रिलेशन, दैट इज sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2t डिवाइड बाय 2। यहाँ पे यूज करो ये 1 बाय, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पावर मिलेगा 1/2। ओके सो यू कैन सी पावर इज द फाइनाइट, इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। सो पावर इज द फाइनाइट क्वांटिटी। ओके आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द डिटेल इंटीग्रेशन। ओके सो पावर इज द फाइनाइट। So energy is infinite, power is the finite, so this is nothing but it is the power signal। so given signal is the power signal। okay this is the power signal। so sinusoidal signal is the power signal। okay now let's calculate the energy of the signal which is x of t is equal to a raised to minus at u of t a greater than 0। condition is that a greater than 0। तो ये decaying exponential signal है। ओके तो इसकी एनर्जी का फॉर एनर्जी का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। एक्स ऑफ टी की जगह पे e टू माइनस एटी लिखेंगे। ओके तो ये हो जाएगा e टू माइनस एटी होल स्क्वायर, और यहाँ पे इट इज द यूनिट स्टेप u ऑफ टी, दैट इज यूनिट स्टेप। इट मीन्स दैट दिस सिग्नल एग्जिस्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बिकॉज अब इसको u ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे e टू माइनस एटी को, तो वो हो जाएगा हमारा इट एग्जिस्ट ओनली फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो बेसिकली ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस 280 dt, और e रेज टू माइनस 280 का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू माइनस 280 डिवाइड बाय माइनस 2a।
लिमिट 0 to infinity, और लिमिट रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/2a विच इज द फाइनाइट. सो एनर्जी इज द फाइनाइट. इसका मतलब ये हुआ कि दिस सिग्नल इज द एनर्जी सिग्नल. दिस इज द एनर्जी सिग्नल. एंड पावर क्या मिलेगा एनर्जी सिग्नल का? 0. पावर क्या मिलेगा? 0. इफ यू कंप्यूट द पावर ऑफ द सिग्नल यू विल गेट डेफिनेटली 0. ओके, सो द गिवन सिग्नल इज द एनर्जी सिग्नल. समझ में आ गया? ओके, सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी कैन से दैट the given signal is either energy or power signal, but the given signal cannot be energy and power simultaneously. अगर आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट किया होगा, एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे हम कर सकते हैं फ्रॉम दिस एग्जांपल. तो जो सिग्नल ए पीरियोडिक होता है, ए पीरियोडिक सिग्नल, ये ए पीरियोडिक सिग्नल है. सो ए पीरियोडिक सिग्नल्स आर जनरली एनर्जी सिग्नल एंड पीरियोडिक सिग्नल आर जनरली पावर सिग्नल. जनरली, नॉट ऑलवेज. ओके, समझ में आ गया? सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एनर्जी एंड पावर सिग्नल. द पावर ऑफ द एनर्जी सिग्नल इज 0. एनर्जी सिग्नल का पावर 0 होता है. द एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट एंड द पीरियोडिक सिग्नल इज ऑलवेज पावर सिग्नल, बट ऑल पावर सिग्नल्स आर नॉट पीरियोडिक. जितने भी पावर सिग्नल है वो पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है. द सिग्नल विथ फाइनाइट ड्यूरेशन एंड फाइनाइट एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज एन एनर्जी सिग्नल. समझ में आ गया? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं regarding the energy and power of the signal. So I am not going to explain each and everything okay in detail because ये आपका recap है, review of the signals and system है, तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ. I am trying my best to explain everything in the detail, but this just a review of the signal and system course, तो थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ अभी इसमें. Okay, now next is the concept of spectral density. Spectral density. So spectral densities are of two types, PSD and ESD. Spectral density are of two types, PSD and ESD. PSD stands for power spectral density. It is the power spectral density. It is a power spectral density. Okay. And ESD stands for energy spectral density. It is the energy spectral density or energy spectrum density. Now what exactly this spectral density defines? So spectral density of signal is nothing but it is the distribution of signal energy or power in frequency domain. अगर सिग्नल कोई है मेरे पास और वो सिग्नल का पावर एंड फ्रीक्वेंसी मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करूं, मतलब द पावर कंटेन इन द सिग्नल इफ आई प्लॉट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? स्पेक्ट्रल डेंसिटी. तो सपोज मेरे पास कोई सिग्नल है और उसका पावर, उसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका पावर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरी हो गई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. Similarly, if I plot energy of the signal with respect to frequency, then it is known as a energy spectral density. तो मतलब energy spectral density से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो मेरे पास जो सिग्नल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी एनर्जी कितनी है उसके बारे में हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से पता चलेगा. सिमिलरली मेरे पास जो सिग्नल है उसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का पावर कितना है वो मुझे किससे पता चलेगा? पीएसडी से पता चलेगा और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से पता चलेगा. सो दिस स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके व्हेन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द पावर और एनर्जी कंटेंट बाय द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल. समझ में आ गया? ओके, सो स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट बेसिकली. ओके, एंड दिस कंसेप्ट इज बिकम इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर फिल्टरिंग द सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके, मतलब आपके पास कोई नॉइसी सिग्नल है और नॉइसी सिग्नल को अगर आपको फिल्टर आउट करना है, उसमें से नॉइस को रिमूव करना है, तो उस टाइम पे स्पेक्ट्रल डेंसिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वेन एवर वी आर डिजाइनिंग द फिल्टर और वेन वी आर डूइंग द फिल्टरिंग, बेसिकली नॉट डिजाइनिंग, वेन एवर वी आर फिल्टरिंग द सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस स्पेक्ट्रल डेंसिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, देन
later on we will focus on the power spectral density. So first, what is energy spectral density? So energy spectral density describes the signal energy per unit bandwidth or per unit frequency which is measured in joule per hertz. Okay, so energy spectral density क्या describe करता है? Energy contained by the particular frequency component. So it is nothing but signal energy per unit bandwidth measured in joule per hertz. Okay, and इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? साई एक्स ऑफ एफ. साई एक्स ऑफ एफ आप देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है. सो साई एक्स ऑफ एफ. ओके, और ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. सो साई एक्स ऑफ एफ इज द स्क्वायर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. सो साई एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में. ओके, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी. सो साई एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एक्स ऑफ एफ होल स्क्वायर. आप आई होप कि आपको ये पता होगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. मतलब आपका सिग्नल का जो सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है. ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो दैट इज अ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. ओके, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रम का तो उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम. तो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट इज अ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी. Now according to Parseval theorem, energy of the signal is given as E of x is equal to minus infinity to infinity x square of t dt is equal to minus infinity to infinity mod x of f square df. Now what is Parseval theorem? So what is Parseval theorem? Parseval theorem आपने सिग्नल सिस्टम कोर्स में पढ़ा होगा. So according to Parseval, the energy in the time domain is equal to energy in the frequency domain. तो ये क्या है? This is the energy in the time domain. Okay, now what is this? Energy in the frequency domain. Okay, this is energy in the frequency domain. But now what is this mod x of f square df? ये क्या है? Sorry, mod x of x square क्या है? psi x of f. तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? psi x of f. तो ये क्या हो जाएगा? E of x is equal to minus infinity to infinity mod x of f whole square की जगह पे मैं लिखूंगा psi x of f. तो ये हो जाएगा psi x of f into df. मतलब क्या हुआ बच्चों कि if I integrate what is psi x of f? Energy spectral density. So if I integrate the energy spectral density, then I will get the energy of the signal. अगर कोई सिग्नल की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको पता है तो उसकी एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करना है? आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट कर लो. इफ यू मेक द इंटीग्रेशन ओवर द ESD, if I do the integration over the ESD, I will get the energy of the signal. Very important. Okay, and one more important property of the ESD, that is energy spectral density is the symmetric in frequency domain about the origin. Okay, मतलब आपने जो frequency spectrum plot किया है, okay, yes, तो energy ESD is the symmetric, मतलब 0 से लेके infinity तक जो ESD है वो ESD माइनस 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक है. मतलब इट इज द सिमेट्रिक इन नेचर. सिमेट्रिक मतलब साई एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू साई एक्स ऑफ माइनस एफ. इट इज अ सिमेट्री और इवन फंक्शन. इट इज अ इवन फंक्शन और सिमेट्रिक. Okay, so what is the total energy of the signal x of t can be expressed as? So total energy can be expressed as 0 to infinity psi x of f df and it is multiplied by 2 because यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी वही यहाँ पे होगी. तो इसको हम 0 से इंफिनिटी करके 2 टाइम्स कर देंगे. सो 0 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स psi x of f df बिकॉज ये सिमेट्रिक है. इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन. समझ में आ गया व्हाट इज ESD एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ESD. तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने डिस्कस की कि अगर आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से एनर्जी फाइंड करना है तो वो ESD को इंटीग्रेट कर लो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी. और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है? इट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन एंड इन दैट केस टोटल एनर्जी कैन बी फाउंड एज 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी psi x of f df. नाउ नेक्स्ट, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. सो सिमिलर to the energy spectral density, power spectral density of the function is defined as, it is represented as capital G x of f, and for any periodic signal the PSD can be PSD is the real, even and non-negative function of the frequency. Okay, तो कोई भी
पीरियोडिक सिग्नल है उसका अगर आप पीएसडी फाइंड करेंगे, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो वो कैसी मिलेगी? रियल, इवन एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वो क्या देता है हमें? इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ द सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ईएसडी क्या देता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। पीएसडी क्या देता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन। मतलब पीएसडी से हमें क्या मालूम पड़ेगा कि कोई भी सिग्नल में जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका पावर कितना है, वो हमें पीएसडी से मालूम पड़ेगा। मैथमेटिकली पीएसडी इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल जी एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सी एन स्क्वायर इंटू डेल्टा एफ माइनस एन ऑफ नेट। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है। सो इट इज द Cn of square mod Cn of square delta f of f minus n of naught. Now एवरेज पावर कैसे फाइंड करेंगे? तो इफ यू लाइक टू फाइंड आउट द एवरेज पावर ऑफ एनी सिग्नल, तो हमें पता है कि एवरेज पावर कैसे फाइंड करते हैं कोई भी सिग्नल का। सो दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 over t naught minus t naught divided by 2 to t naught divided by 2 x square of t dt, which is nothing but in the discrete domain it is the summation n is equal to minus infinity mod Cn square. ओके, नाउ ये क्या है? समेशन मोड Cn स्क्वायर क्या है? वो पावर है। ओके, तो यूजिंग पीएसडी द नॉर्मलाइज्ड पावर ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी जी एक्स ऑफ एफ इंटू डी एफ। ओके, मतलब अगर सिमिलर टू एनर्जी, अगर आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से पावर फाइंड करना है तो क्या करना है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट कर लो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यू विल गेट द पावर of the signal. Okay, and similar to ESD, power spectral density is also symmetric in frequency about the origin. तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल पावर कैसे लिख सकते हैं? 2 times 0 to infinity g of x f of df, बिकॉज जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक है। मतलब वो 0 to infinity में जो जितनी पीएसडी होती है वही माइनस इंफिनिटी को, ये माइनस इन्फिनिटी जीरो है और ये 0 to infinity दोनों सिमेट्रिक होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी के बदले 0 to infinity करके इसको 2 times कर सकते हैं। ओके, सो दिस द कंसेप्ट ऑफ पीएसडी। लेट मी गिव द सम वन इमेज ऑफ द पीएसडी। सो इन दिस फिगर यू कैन सी दिस इज द पीएसडी ऑफ सम नॉइज सिग्नल। कोई एक नॉइज सिग्नल है। ओके, ये नॉइज सिग्नल का पीएसडी है। ओके, तो आप देख सकते हो कि पीएसडी क्या होता है? इट इज द प्लॉट ऑफ द पावर, एवरेज पावर वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का पावर कितना है वो यहाँ पे प्लॉट किया है। तो सपोज ये 200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो उसमें पावर इतना है। ओके, दैट इज 30 dB। ओके, अगर कोई फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज है तो उसमें पावर इतना है, सपोज 20 हर्ट्ज। सो इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो ये नॉइसी सिग्नल की पीएसडी है। कोई एक नॉइज सिग्नल है उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। और ये नॉइज सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट? तो उसमें 0 से लेके 400 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। और ये हर एक फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग पावर कितना है वो यहाँ पे प्लॉट है, जिसको हम बोलते हैं पीएसडी, दैट इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेट्स स्टॉप हियर। आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया रिगार्डिंग द एनर्जी एंड पावर ऑफ द सिग्नल एज वेल एज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको वो समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर। ओके, वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।